Hi guys, how you doing? So today I had to come live to reveal some very important things that make a difference, and the eye opener was this morning when I tried to log into my Instagram account and it is blocked. They're not letting me access my Instagram account, which is my most working account where I talk to people on direct messages and everything. So then I started putting two and two together and figured out why did that happen. Because I made the video yesterday that Arjun Kapoor is now my boyfriend, Malaika and Arbaz did that. And they have a very big part to play in my downfall. Something that has been purposely hidden from me. People have made crores in hiding this fact and making my tragedy into a comedy of errors. And today I'm going to trace it all back to the time when I used to live in that wretched Kamatipura Videocon guest house. One night when I was lying there, they came and they put the gin in me. Yes, it was Malaika and Arbaz who put the gin in me. Of course, Poonam also did a lot of black magic on me. There's no denying it. But now I'm going to start taking their names. And the very next day when I was leaving for the FDCI to do a fashion show there, they made Amrita Chipko next to me. And it's been that day in 2005 and today in 2019, ये खान परिवार की लड़कियां मुझसे चिपकी रहती हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ. I did mention to you that when I was invited by the head of PVR at Juhu to come and watch a movie called The Sex and the City when it was premiering in India, Malaika stalked me and reached the premiere without an invitation. So this is the kind of a woman she is. And I'm going to expose her as well as her husband Arbaz, okay, who has hacked into my phone for years now. And I guess Dale Bhagarwal was correct when he said that Salman Khan hacks into the phone. But we are not going to keep on taking Salman's name because it's these two errand boy and girl, Malaika and Arbaz, who've been sitting on his shoulder and firing all these venomous arrows at me while he sits there getting defamed and is the butt of all jokes as far as Karan Johar's group and Shah Rukh Khan is concerned. So coming back to the point about what these two nasty, devious devils, the amount of havoc they've created in my life and the audacity that they have, that even this morning they've gone and they have tampered with my Instagram account, an account which I use at all times, you know, so this is what they've done. And this is a very strict warning. After Bigg Boss, I had an Twitter handle called Pooja Mishra. And there, they hacked, when I was getting very good response from my audience, from my followers, they were calling me to Singapore, they were calling me to Oman, they were calling me to various countries. They hacked into my account and they put a dog's picture there. Now, secondly, spare me says PM. When it got 1.5 lakh followers, they hacked into my account and they suspended it. Then I had a Facebook page where I had 1 lakh likes. There they lied to me कि दंगल के लिए आपको रोल देना है, आपको अपना ईमेल और पासवर्ड दोनों देना पड़ेगा. 4 बार ये मेल मुझे भेजा, मैंने इग्नोर किया. 5वीं बार भेजा, मैंने दे दिया अपना पासवर्ड. They hacked into my account and they pulled down my page which had 1 lakh likes. All this was being done by Arbaz Khan and Malaika. Because apparently Shatrughan Sinha was giving the backstory, or somebody who wants to help me was giving the backstory to Amir Khan Productions to make Dangal. Okay, if you go back and dig deeper, you'll understand what I'm saying. And I did light jalao. And it wasn't Shatrughan Sinha because Shatrughan Sinha is also a Shikhandi, a Narad Muni. अगर वही सीधे होते 15 साल नहीं लगते मुझे ये सब जानने में. All right, even he is the kind of a person कि दो लोग लड़ रहे तो बीच में मैं रोटी चुरा के कैसे बाजी मार लूं. Otherwise, it wouldn't have taken 15 years for me to know what I'm going to tell you today. So then I used to live in this Pune house after being deported from Bombay when I was so bloody famous there and I couldn't walk the streets without getting mobbed and without bodyguards. I was deported back. How? Let's get into that. Okay. At that time, Timmy Narang and Isha Kopikar's guns were on fire. And I told you that they owe me money. Their mother said so. Mona Narang has told me she will pay me compensation for the harassment Timmy, Jimmy, Ramona and Isha caused at the beginning of my career. And it still stands true till today. And the more they delayed, that much interest will be added to it. The more the years you delayed by, that much the amount will increase. Be very clear on that. So that's why when Malaika got to know that Mona Narang is going to pay Pooja something, she went and she started buttering Narang and that clan too. So all the good life that was meant for me,
Malaika was seen enjoying it with all the handbags and all the brands and everything because Narang was buttering her cunt to shut up and keep on suppressing me. This is how they held me hostage, and they earned money from me in terms of money and the good life, keeping me as a hostage. All right, and this is going to be clear to the whole world now because I'm not going to leave them now. Even if my mother, who's possessed by jinn, keeps on disturbing me, she be damned and go to hell because I am here to claim what's rightfully mine. Okay, now I'm going to just put this here so that fucking rand. This is my mother who gives me 500 rupees in 3 months. But done herself. अरबाज और मलाइका के जिन जिन्नात में फंसी हुई पागल औरत. All right, 1 minute. I'm going to just get myself a chair because there's no charge in my phone. I was sitting inside. Otherwise, I had no means to sit inside this wretched, senile, jinn-possessed cunt's house. All right. So why was the Instagram account pulled down? Because for once I was taking the right names. Instead of saying Poonam, I was saying Hazara Malaika. And today I'm even going to take Arbaz Khan's name. Everywhere where he's fucked with me. 35 movies this bastard has stolen off my phone and given to all the chudaniyas of Salman Khan. Jacqueline को मेरे पुणे फैशन वीक का इसने शो चुरा के शो स्टॉपर दे दिया, हाँ, नंदिता साबू का. फिर इसने मेरा यमुना पगला दीवारा का गाना चुरा के दे दिया महक को. मेरी कितनी पिक्चरों में इसने मुझे कैंसिल करा के सलमान खान की गर्लफ्रेंड्स को घुसाया है. प्लीज टेल मी गाइस, इज दिस इवन ह्यूमन? इट्स फकिंग मॉन्स्ट्रस. ये सब अरबाज करता था और मलाइका तो उससे 10 कदम आगे कुतिया, बुढ़न, रांड, लालची इतनी की सर से पैर अपने लालच में डूबी हुई है हरामजादी. उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तू रोकने की कोशिश करेगी क्योंकि फाइनली मैं सच बोल रही हूं. तूने तो बहुत जिन डाले मुझे गुमराह करने के लिए. डू यू नो अरबाज खान पेड मनी टू मलाइका to tell her to put jinns on me so that in the biography all the sins that Arbaz and Malaika have done, I put it in Poonam and Shatrughan's name. And she is being paid for that and being promised a good life in Bombay. That's why when I went back to Bombay, they were splashing Malaika and Sonakshi everywhere. सोनाक्षी ने ब्लैकमेल करके बोला कि भाई आप अपने पाप मेरे माँ बाप के नाम पे डाल रहे हो, अब तो आपको मेरे को अपनी पिक्चर में लेना ही पड़ेगा. तो नाक घिस के उन्हें सोनाक्षी को लेना ही पड़ा क्योंकि ये पाप मलाइका और अरबाज ने किए थे. मुझे चूतिया बना के जिन जिन्नात से मेरे पे राइड करके मेरे से 8 लाख इन लोग ने वेस्ट करा के वो बायोग्राफी लिखाई जिसमें अपने सारे पाप पूनम और शत्रुघ्न के नाम पे डाले. मैं ये नहीं कह रही कि पूनम और शत्रुघ्न बड़े सीधे और बिल्कुल जेलस नहीं है, वो भी जेलस है. मेरे कपड़े उठवा के वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस से पूनम ने भी मुझ पे काला जादू करवाया था जब मैं उसकी पिक्चर के टक्कर की पब्लिसिटी हो रही थी मेरी, क्योंकि वो भी मुझे बड़ा स्टार बनते हुए नहीं देख सकती क्योंकि उसका खुद का कॉम्प्लेक्स है. बिकॉज शी कुडंट बी अ सक्सेसफुल स्टार, सो शी कांट सी अदर्स बिकम सक्सेसफुल स्टार्स. तो यहां वो गलत थे. और नारंग को जो मुझे पैसे देने थे वो पैसे ये जाके टिमी नारंग और ईशा ने लंड चूसी सलीम खान की. तब अरबाज और मलाइका को मेरे पीछे लगाया गया, मुझ पे और जिन्नात डाल के मुझे पागल किया गया. ओके, जैसे ये शान से सोसाइटी में घूम सके कि मैं हूं टिमी नारंग, मैं हूं ईशा कोपेकर इसकी बीवी, और देखो वो बेचारी लड़की जिसकी जिंदगी खा के जैसे सीढ़ी बना के जिन्नात डाल के उसे पागल करके रूम में लॉक करके रखा हुआ है. और जब मैंने हंगामे करने शुरू किए कि मेरे पैसे कहां हैं मोना नारंग, मेरे पैसे दे, मैंने पहले कभी इतनी ओपनली नहीं बोले पर अब बोलूंगी, तो मलाइका को ऐश कराई. यहां वो वेकेशन कर रही है मालदीव्स में, एक और से सोनाक्षी भी उनके साथ जाके सो रही है. जब सोनाक्षी ने देखा कि कैसा मलाइका मुझे निचोड़ के मुझे दोह रही है और माल कमा रही है, तो उसने बोला मेरा हिस्सा कहां है, तो उसे स्ट्रीक्स कैंपेन दे दिया. तब सत्यपाल सारी रामायण होने लगा जब सिन्हा ने अपना हिस्सा मांगा ये बोल के कि वो मेरे करीब है. वो कौन से मेरे करीब है? 15 साल नहीं लगते मुझे ये सब जानने में अगर वही सीधे होते. ओके, दे आर नो फ्रेंड्स ऑफ माइंड. सी ग्रेड खुद है, उसीलिए सी ग्रेड मुझे बना के काम करवाते थे. सो दिस वॉज द होल फक.
fucked up spider web I've been stuck in 15 years. वीएन दूत ने मुझे कंफर्म किया इंटरनेशनल शो के लिए, जिसे मैं एंकर करने वाली थी, यूरोप में कर रहा था वो कोई कंज्यूमर मीट वीडियोकॉन के लिए. सडनली वहां मलाइका अपना नंगा बुढ़ा भोसड़ा हिला हिला के नाचने लगी स्टेज पे, और उसने बोला कि मेरे लंडे साजिद को लो ना, अरबाज का बेस्ट फ्रेंड पूजा मिश्रा को क्यों लेते हो. उसने मेरा पत्ता काटा. फिर उसके बाद जब वीडियोकॉन गेस्ट हाउस में मेरे को कोई भी एंकरिंग का जॉब मिल रहा था, एमटीवी में मुझे एंकर की तरह लिया गया, मुझे काट के खुद घुस गई अपनी बहन के साथ. हर जगह घुस जाती थी मुझे काट काट के. दे हैव केप्ट मी हॉस्टेज. They have kept me hostage for 15 years, Arbaz and Malaika. And then when I take their names, they're trying to defunct my Instagram account. 2 बार ट्विटर और 1 बार फेसबुक पे तूने खेल लिया. इस बार अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इस लाइव के बाद फंक्शनल नहीं मिला मुझे, तो नंगा कर करके एक एक तेरे पाप बताऊंगी. हरामजादी और हरामजादे, बहुत खेल लिया मेरे साथ. टिमी नारंग और ईशा कोपिकर बन के बैठे हैं, और उन्हें भी साइड में दोह रहे हैं फॉर द गुड लाइफ एंड फॉर ब्रांडेड बैग्स एंड वेकेशंस. और वो साले अपॉर्चुनिस्ट सोनाक्षी के साथ सो के उसे वेकेशन मालदीव भेज रहा है, इसे भेज रहा है, सेशल भेज रहा है, और मैं बेचारी इस सब में एक पिंजरे की तरह कैद सांसें दबवाती हुई विक्टिम बनी बैठी हूं, कंफ्यूज बाय द जिन्स लेफ्ट ऑन मी बाय अरबाज एंड मलाइका. ओके, इनफ इज इनफ. वहां शत्रुघ्न सिन्हा बीच में मैं अपनी लंड घुसा के कैसे थोड़ा माल हपक के ले जाऊं, क्योंकि वो अगर पैसे का भूखा नहीं होता, पब्लिसिटी, शोहरत और पिक्चरों का भूखा नहीं होता, उसने कभी मेरी जिंदगी एक बलि के बकरे की तरह सैक्रिफाइस होते हुए नहीं देखना था. पर उसने देखा और एंजॉय किया और दोहा और निचोड़ा इस फैक्ट को 15 साल तक. मेरा नाम डाल दो, मेरा नाम डाल दो, सोनाक्षी को एक और पिक्चर मिल जाएगी सलमान खान के थ्रू. ये था शत्रुघ्न सिन्हा. जब भी नारंग ने चाहा कि वो भाई कुछ मुझे दे दे, शायद उनका थोड़ा बहुत ईमान है या पैसे बहुत है, तो बीच में सोनाक्षी को भी BMW दो, मलाइका को कुछ दो, क्योंकि ये कुतियाएं बीच में बैठी हुई थी, क्योंकि इनके सर पे लंड थे अरबाज और शत्रुघ्न. तो इन कुतियों को और उनके लंडों को नहीं तोड़ दिया ना, तो मैं पूजा मिश्रा नहीं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की बेटी. अंडरस्टैंड? यू बेटर फकिंग अंडरस्टैंड. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने से तेरा गंदा खेल एक्सपोज होने से रुक नहीं जाएगा. And as far as Arjun is concerned, of course I've been sexting him and he really finds me attractive and he really likes the fact that I'm so tall, which is equal to a longer vaginal canal and a younger body to have sex with. And उसे भी ये बात पता है, जब पता चलेगी कि इसने अरबाज से पैसे लिए थे मुझसे बायोग्राफी में गलत लिखवाने के लिए, अपने पापा अरबाज के पाप छुपाने के लिए, तब उसे पता चलेगा कि जो वो मलाइका के साथ घूम रहा है बस एक नाटक है. Her real loyalty is lie with Arbaz. He's nowhere in her life because she's a gold digging bitch. All she cares about is satiating her fake buddhan ego and about gold digging. वो उसकी है जो उसे पैसा और शोहरत और ऐश देता है. सलमान खान के पीठ पे खंजर मारती है मादरचोद जब करण जौहर के साथ पार्टी करती है. इतनी बड़ी दो मुही कुतिया है, धोबी का कुत्ता है, ना घर की ना घाट की. Okay? When in Pune I started ordering stuff for Hotter Than You, the music videos preparations, I got to know of an app from where you can order international stuff. I used to order wigs. There you have to make the payment by card, then only will they deliver to you. You have to pay the shipping. I used to make the payment by my card. I spent $1.5 lakh on the clothes and the wigs and everything. But it used to never reach me because इस कुतिया ने इस घर पे आंख लगा के इसमें जिन छोड़ रखे हैं. इसने और अरबाज ने. मैं ऑर्डर करती थी यहां से और जाता था मलाइका के पास, पोस्ट ऑफिस से उठवा लेती थी सोनाक्षी के साथ. ये कुतिया मलाइका. मैं जमुना पाई के क्लिनिक में फेशियल कराने बचपन से जाती हूं. जब मैं अंधेरी के क्लिनिक गई जमुना पाई के and I was asking for an appointment, one random woman came and she started hitting me on my face. I said, excuse me, why are you hitting me? No, you can't get a facial done here. You get out of here. मलाइका ने उसे भेजा था.
इतनी बड़ी कुत्तन राण है ये हबड़ो, बुड्ढन। Can you imagine? From 2005 she's been bullying and harassing me like this, along with Arbaz. कहीं भी बड़े लोगों के बीच में बैठो, पेट पादने लगता है, पेट परेशान करने लगता है। इसके जिन कि हाई स्ट्राटा में मेरी कोई पोजीशन ना रहे, इसीलिए मेरे बाप को मार डाला अरबाज और मलाइका ने जिन जिन्नात से कि एक वो कॉल करे, अभी भी तो लोग खड़े हो जाते हैं, तो इसके बाप को मार डालो जिससे कहीं की ना बचे। इसे हॉस्टेज बना के हमने बहुत कमाया है, बहुत आतंक और उत्पात मचाया है। यस और नो? जब मैंने वीएन दूत को मैसेज भेजा कि आप प्लीज मेरे पापा के पैसे वापस करिए, उस दिन मलाइका और अरबाज ने स्विगी के डिलीवरी बॉय से मुझे असॉल्ट कराया, क्योंकि इनकी लालची निगाहें उस पैसे पे हैं जिस पैसे से मैं अपना करियर बनाना चाहती हूं, जिस पैसे से मैं अपने फैमिली, अगर मेरी मां कल उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके इलाज के लिए काम में आएंगे, उस पे मलाइका और अरबाज की आंख टिकी हुई है। जब मैंने वॉइस नोट भेजा वीएन दूत को गुस्से से कि मेरे पैसे वापस दो, उसी दिन स्विगी का डिलीवरी बॉय मुझे क्यों मार रहा था? क्योंकि ये अरबाज और मलाइका ने कराया था, क्योंकि उनकी आंख टिकी हुई है उस पैसे पे जो मेरे बाप ने अपनी जिंदगी दे के कमाए हैं। जो पैसे नारंग मेरे को देने वाला था, उस पे मलाइका और अरबाज की आंख टिकी हुई है। उसीलिए ईशा की गाड़ में जाके मिर्चियां भरती है साली कुतिया, मुझसे ऐसे पोस्ट कराती है कि वो तिलबिला के जल जाए, जिससे उसकी मुट्ठी में रहे, उसे मालदीव सेशेल घुमाए और ब्रांडेड बैग दिलाए एंड गुड लाइफ लीड कराए। सोनाक्षी को तिलबिलाने वाले पोस्ट कराती है कुतिया कि सोनाक्षी इसकी मुट्ठी में बनी बैठी रहे, ये और अरबाज। Understand? This is the game they have been playing with my head thanks to the jinns that they've put in me. And I can't even begin to tell you that had this core of jinns not been there on me, how much would have I achieved by now, how much of money I would have made, and I would have probably been married and or been in a stable relationship. Okay? फोन में घुस के कोई भी काम हो रहा है, मेरा परसेंटेज, मेरा हिस्सा। अरबाज, अगर तू इतनी, तेरे को प्राइड और घमंड है कि तूने मुझे रास्ता दिखाया, पर ये रास्ता तो बिल्कुल उल्टा था, ये रास्ता तो बिल्कुल गलत था, जिसमें तू अपनी गांड बचा रहा था और दूसरों पे ब्लेम गेम खेल रहा था। सब हरामी है। वीएन दूत कम हरामी है, पैसे खा के बैठा है। नारंग कम हरामी है, पैसे खा के बैठा है। सिन्हा कम हरामी है कि शिखंडी बन के मेरी सिचुएशन को दोहरा है। सब हरामी है, पर तूने तो विश्वास नाम की चीज डिक्शनरी से ही उड़ा दी, हरामजादे। हर चीज में कमीशन। जब से इन लोगों के पल्ले पड़ी हूं, अभी तो पार्टी में मेरे कितने पैसे उड़वा दिए। लाइफ इंश्योरेंस उड़वा दी, ये उड़वा दिया, वो उड़वा दिया, सारे म्यूचुअल फंड तोड़वा दिए, एलआईसी तोड़वा दी, पापा ने जो भी मेरे फिक्स डिपॉजिट रखे थे सब तोड़वा दिया, रोड पे ले आया। और फिर उसके बाद आपने वो धन रांडो का भौसड़ा सजाएगा, मेरे खोपड़े प्यारों से आगे बढ़ाएगा, तो ले फाड़ती हूं उसका भौसड़ा और तोड़ती हूं तेरी लंड, हरामजादा। Okay, now I'm going to start reading your messages. Ayush Sharma is watching. Aneet Brar is watching. Dibankar Pokhrel is watching. Amit Raj is watching. Ayush Sharma, वीएन दूत लोमड़ा। हाँ, वीएन दूत लोमड़ा अरबाज के साथ मिला हुआ है, उसीलिए अपने शोज में मुझे कंफर्म करने के बाद भी इसकी बुड्ढन भोसड़िया लालची कुतिया जो खोपड़े से लेके पैर तक अपनी लार और लालच में डूबी हुई है, उसे लेके जाता था। 100% वीएन दूत इज विथ हिम, एंड वीएन दूत विल आल्सो हैव टू पे फॉर दैट काइंड ऑफ हैरेसमेंट दैट ही पुट मी थ्रू फॉर नाइट्स ऑन एंड। आई क्राइड दैट व्हाई डिड दे नॉट टेक मी विद देम। अंडरस्टैंड? लक्ष्य बख्शी इज वॉचिंग।
RJ Salman Nazir is watching. Nida Mehfooz is watching. Shweta Naidu, you fuck out of my chat room. तेरे को बहुत गांड में चर्बी है, 2 लात मार के तुझे ब्लॉक कर दूंगी. Get out of here, bloody bitch. Lakshya Bakshi, you shouldn't abuse your mom. Well, she behaves in such a harami manner with the jinns around her. I can't be helped, okay? हर दिन मेरा खून जलवाया, खून उबलवाया इस अरबाज ने इसके जिन जिन्नात और भोसड़ी गिरी से. Enough! जेल नहीं जाना है तो मेरे को पहले बंदी बना के फिर मुझे मोहरा बनाओगे. 2 लाफे मारूंगी सालों. बहन की लौड़ी मल्लू. हाँ होता है ही, सोनाक्षी की लौड़ी है मलाइका. मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है. वरना मेरे से चुरा चुरा के उसके भोसड़े में क्यों भरती थी. जिन जिन्नात डाल के मेरी ओरिजिनलिटी चूस के उसकी खूबसूरती बढ़ा के मुझे गंदा और अगली क्यों बना रही है. रंडी तो है ही एक नंबर की. और जेल जाएगी ये अपना मोटा बुढ़न सूखा हुआ भोसड़ा लेके और अरबाज अपनी टूटी हुई लैंड लेके. And where is my BMW 7 Series? In सोनाक्षी's भोसड़ा. क्योंकि पूनम के साथ सोता था ना टिम्मी, इसीलिए उसकी कुतिया ने मलाइका के साथ मिलके पूनम की पूरी कुरान लिखवाई है पापों की मुझसे. Look how they've written on me. मुझे क्या मिला वो कुरान लिख के. मेरी BMW 7 Series भेजीशा बेच कुतिया. मेरे कंधे पे चढ़ के तू भोसड़ेगिरी कर रही है रांडो. हिजड़ी साली मादर चोद हवाड़ा की लौड़ी. तुम बहुत अच्छी हो पर तुम्हारी माता जी एक रांड हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब करती हैं तुम्हें. 100% आई अग्री विथ यू. I don't know what's Arjun's dick size. When I'll fuck him, I'll let you know. I'll click pictures also if you like. Shweta Naidu, when will we be able to watch your biography? Very soon. Now that it's getting re-articulated and realigned, you'll watch it very soon. और ये जो मेरे खोपड़े पे बैठती थी बैंड्रा के घर में, ये भी मलाइका और सोनाक्षी थी. जो मेरा जीना हराम किया बैंड्रा के घर में, ये भी मलाइका और सोनाक्षी ही थी. मैंने तो इतना तक सुना है कि मलाइका ने मेरे घर में कैमरा लगा रखे हैं. इतना उसका भोसड़ा जलन से आग में जलता रहता है कुतिया. मेरा सब कुछ लूट के बैठी है, तब भी इसकी लालच खत्म नहीं होती. मेरे जिम में डिटेक्टिव लगा के जो भी पोजेस मैं सीख रही हूँ कैलिस्थेनिक्स में, खुद करके अपना इंस्टाग्राम ऐड चलाती है रांडो. उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उतारेगी. स्ट्रिक्टली वार्निंग यू, as soon as this life gets over, if my Instagram account is not functional, both you and your randa husband are dead. Understand? Fucking bitch. हाँ मैं पाती क्यों? इसी कुतिया की सेक्स की भूख की वजह से ना. ये रंडी और सोनाक्षी मिल मिल के यही किया है इन लोगों ने. और जो मेरे बैंड्रा के घर में तूने मुझे हैरेस किया क्योंकि तेरी लालच आंखें मेरे पैसे पे टिकी हुई थी, उसके पैसे देने पड़ेंगे. आज से 10 lakhs बाय टुमारो, नाउ इट्स बिकम 50 lakhs. और क्योंकि मैं पैसे मांग रही हूँ, इन लोग का खुलासा कर रही हूँ, ये लोग मेरा इंस्टाग्राम हटा के मुझे वार्न कर रहे हैं. मुझे वार्न करेगी कुतिया जिसका करियर ही मेरी भीख पे पला है. ये मेरा जूता और ये घसा तेरे भौसड़े के अंदर लांडे. ये मेरा जूता और ये घसा तेरे भौसड़े के अंदर. राड़ साली भौसड़ी वाली.
बड़ी मुझे होस्टेज बनाने चली थी अपने सी ग्रेड एक्टर के साथ जिन जिन्नात का जादू इस्तेमाल करके। ले ये जूता ना जब पूरी तरह से तेरे भौंसड़े के अंदर ऐसे घुसेड़ूंगी ना, तेरे मुंह और तेरी गाल में भी, तो तेरे सिलिकॉन फट के आएंगे मेरे हाथ में। लाड़ी रा भौंसड़ी वाली कुतिया। रंडी साली भोसड़ी मादर चोदनी। Shahrukh Khan said in his recent interview he doesn't know me. Then at the Colors party, how did he hug me? Then when I was 18 years old, why did he meet me and say that everybody says that you're a bohemian party girl? Huh? Tell him to go look up his history and then talk. And send me the link of that interview, please. I'd like to see it. Inbox it to me if it's true. For all you know, you are only lying. अरबाज का क्या किया जाए? बांध के नंगा करके उसकी लंड काटी जाए पब्लिक में, जिससे फिर कभी वो किसी बेचारी उससे ज्यादा अमीर, उससे ज्यादा हाई क्लास लड़की को ऐसे कैदी ना बनाए। वीएन दूध की जगह इसका नाम वीएन चूत होना चाहिए था। आपको पूजा बेदी ने पागल कहा है तो खुद ही पागल है, बुढ़ी हो रही है। आई इग्नोर सच सेनाइल बिचेस। यह हबड़ो आपकी मॉम का माइंड कंट्रोल कर रही है। बी केयरफुल। आई नो दैट। दैट्स आई डोंट लिसन टू हर। आई नो दैट ऑलरेडी। क्योंकि उसने सिलिकॉन घुसवाया है मलाइका अपना हबड़ो तीत छुपाने के लिए। फकिंग रांड। पूजा was Juhi Parmar a deserving winner? Absolutely not. Because Juhi reminds me of Sonakshi. Behenji, Motan, serial ki Gamar. She reminds me of Sonakshi. And no, she was not the deserving winner. The deserving winner was only me. एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। इन सब के पीछे मलाइका है। 100%। मुझे बिल्कुल रिलायबल सोर्स से न्यूज आई है कि अरबाज ने उसे बोला कि 1 करोड़ तेरे भोसड़े में भरूंगा। ये पूजा मिश्रा अपना खुलासा करने जा रही है, मैं जेल चला जाऊंगा, तू ये पैसे रख और तू अपने जिन जन्नात से उससे गलत बातें लिखवा, किसी और पे ब्लेम डलवा दे और फिर तेरी ऐश, तेरा राज, मेरे से भी ऊपर चढ़ के तू चल। ऐसा मुझे सुनने में आया है। ये बात या तो अरबाज ने की है या तो वीएन धूत ने की है। इन्हीं दोनों में से किसी ने यह काम किया है। और इस कुतिया ने मुझे मीन्स नौकर बना के मेरे 8 लाख गवा के वो बायोग्राफी लिखी। मैं 2015 से वेकेशन पे कहीं नहीं गई हूं। उस 8 लाख में मैं पूरा वर्ल्ड टूर करके आ जाती साली रांडा। उसके बाद जब जो लोग मेरे पापा के पैसे खा के बैठे, जिसके लिए मेरे पापा मर गए, तो मेरे को मरवाएगी तू? तेरी गांव में इतना दम है भोसड़ी वाली। बोल, ये भोसड़े में घुसाओ तेरे आगे पीछे और गांव में भी बोल रहा है। जड़ी साली मादर चोदनी हबड़ो। Hi Pooja, your house is so beautiful. That's why Habara Ran is so jealous of it that she wants to usurp it. लालच, अपनी लालच की लार से खोपड़े से पैर तक डूबी हुई है ये रांडो अरबाज के साथ। कुतिया, इतनी लालच है इन मुसल्टों में। 35 इयर्स मेरा करियर खा गए पर लालच खत्म नहीं हुई।
इतना चौधा और चुदवाया, लंड से खिंच के जेल में जाने का डर था तो मेरे बाप को मार डाला। और उसके बाद भी जब मैं 3 महीने आई हूं बॉम्बे में, मेरा क्या हाल किया। उसके बाद इस बुढ़न सूखी हुई भोसड़ी में इतना दम है, या इस सी ग्रेड एक्टर लंडे में इतना दम है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने चला है भोसड़ी वाले। ये पूरा लाइव पूरे पुलिस को भेज रही हूं मैं। अब बता अपनी लंड पे लकवा मारे किस कोने में छुपेगा, और बुढ़न भोसड़िया को कहां छुपाएगा? बोल हराम के पिल्ले। नहीं, अभी तक मैंने अपनी टट्टी टिमी नारंग और ईशा को पिकर उसके रंडे 2 मुंहे परिवार को नहीं किया, पर करूंगी जरूर अगर मेरी गाड़ी मुझे जल्दी से जल्दी नहीं भेजी। हो गया तुम्हारा है? इतना हकड़ रही हो कि घर के अंदर तक ऊपर तक सुन रहा है। 35 इयर्स का करियर नहीं, 20 साल बोल रही हूं मैं। उससे पहले जो मेरा बचपन था, ये हबड़ो और जय हिंद में पढ़ती थी साली रांडो, और मैं HR में। तब से देखती थी इसे अपने दूध लड़कों से रगड़ते हुए उनके पैसे निकालने की लालच में। रंडी साली भोसड़ी वाली, हवाड़ा थाने की कीड़ी, लालच से बड़ी इसकी मुंह तक गाड़ और भौसा। किसी और का माल कैसे अंदर करूं, उसे अपने जिंदनाथ का बंदी बना के। इसीलिए एक लंडा सिगरेट एक्टर मिल गया शादी करने को, अरबाज खान। अर्जुन कपूर इस पे पा देगा नहीं, ये बात तू लिख ले। वो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी अरबाज की तरह चूतिया नहीं है जो इस रंडी के ट्रैप में फंसेगा। पूजा, यू टू टेक ऑल योर मनी बैक फ्रॉम दीज भिखारीज। आज आपका लाइफस्टाइल हबड़ों से भी अच्छा होना चाहिए था, बट हबड़ो टुक एवरीथिंग फ्रॉम यू 100% अलॉन्ग विथ सोनाक्षी। अगर सोनाक्षी ने उसका साथ नहीं दिया होता, वो इतने लंबा नहीं खींच पाती अपना पाप। सोनाक्षी ने भी उसको पूरा साथ दिया, क्योंकि सोनाक्षी खुद मुझसे जलती है और मुझे एक बड़ा स्टार बनता हुआ नहीं देख सकती। ये बात मत भूलिए आप। शत्रुघ्न सिन्हा मेरी मदर का नंबर जाता है, उसकी बीवी मेरी मदर का नंबर जानती है। वो फोन करके नहीं बोल सकती थे कि जो भी आरोप हम पे डाले इसने बायोग्राफी में, सब मलाइका और अरबाज ने किए हैं। पर वो बताना चाहते नहीं थे। वो मुझे अंदर रख के इस सिचुएशन को कैसे निचोड़ के सोनाक्षी के लिए और माल सलमान और उसके परिवार से अंदर करे, वो करना चाहते थे। तो वो कम रंडे, कम लालची है। चलो guys, I'm going to go now. I'm going to drink a glass of water. I'm going to smoke a cigarette. Then I'm going to come back. You all keep your fresh set of questions ready. I'll answer them, but I need a break. I've been boiling my blood too much. I'm going to be back in another 15-20 minutes. Just answering the last lot of questions. Pooja, how did Malaika get those expensive bags? She isn't even classy. How come she's wearing Dior and Chanel? She seems more like Sarojini Mai, 25 रुपीस की ड्रेस की परचेजर। रमोना नारंग, जिसके साथ मिलके इसने मुझे टट्टी खिलाई, मेरा पेट बैठाया, रमोना नारंग के कपड़े पहनती है वो, क्योंकि वो रंडी मुझे पैसे नहीं देना चाहती उसके और उसके भाई और उसके परिवार के पाप के लिए, विच दे ओwe me now for 10 years। जितना डीले करोगे उतने साल बढ़ेंगे, उतना बढ़ता जाएगा अमाउंट, समझे? बार बार बोल रही हूं। Okay, Himang, this is the last question, then I'm going. I'll be back again in half an hour. Let me calm down. Let me drink a glass of water. Let me smoke a cigarette. You all keep your new fresh set of questions ready. Himang says, see, your mom came again because Habdo is controlling her mind. Yeah, she came. She was trying to stop me from giving this live. But I ignored her. I just ignored her. गाड़ तोड़ दीजिए इन लोग की, वही मैं करूंगी. See you guys in another half an hour. Till then, you prepare your questions. And start sharing this live.
Share today's live where I'm taking Malaika and Arbaz's name. Share yesterday's live and share the live before that also at night, which I made after I've come back to Pune. Share all the 3 lives I've given from Pune, guys. And you don't have to upload it on YouTube. You can just share it on your social media, Instagram and Facebook. That's enough. See you. Bye.